Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will start property of solid. Before that, uh, we will revise the topics with the name only, not in detail, whatever we have completed. First, we studied the solid, characteristic of solid, then different type of solid, crystalline, amorphous, then classification of crystalline solid, in molecular solid, metallic solid, in ionic solid. Then we study about the crystal lattice, unit cell, okay, three-dimensional, one-dimensional, two-dimensional, three-dimensional arrangement, close packing, packing efficiency, then density, numerical on density we study, and then we started defect. In defect we started studied line defect, point defect, then further classified point defect in the stoichiometric defect, then impurity defect and non-stoichiometric defect. Stoichiometric defect further divided into two parts, vacancy defect and interstitial defect in case of covalent compound, Schottky defect and Frankel defect in case of ionic compound. Their properties, change in properties, all these we discussed. Then impurity defect we discussed. Then non-stoichiometric defect. In non-stoichiometric defect we discussed about the metal excess defect and metal deficiency defect. In metal excess defect we discuss about the metal excess due to anionic vacancy and metal excess defect due to interstitial cation. Then we discuss about the metal deficiency defect. After this, now we have to study only two topic in this chapter. That is the electronic property and magnetic property. Okay. In the heading of property of solids. Okay. Now we see here the property of solid. What are the property of solid? There are two properties of solid. One is the electronic property and the other is the magnetic property. These both properties depend upon the free electron. Okay. Now we start about the electronic properties. Electronic properties. Properties due to presence of या movement of free electron electrons is known as electronic properties. Okay. On the basis of electronic properties, substances are further classified into three. On the basis of electronic properties, substances are further classified into
into 2 1 is the 2 1 is the conductor, second one is the insulator, classified into 3: conductor, insulator, and third one is the semiconductor. You know all these three substance, conductor, insulator and semiconductor, in the form of metal, non-metal and metalloid. Okay, now we will start from the conductor. Have you noted this? Okay, now we will see, we will start here from the conductor. Conductor. As the name suggests, conductor. What are conductors? Conductors are those substances which can conduct heat and electricity. Heat and electricity. Conductor are those which can conduct electricity and heat. And the conductivity is between the 10 to power 4 to 10 to power 7 ohm per meter. Okay, those are the conductor. One thing is that also conduction, as you know that in each atom there are two type of bands. One is the conduction band, one is the valence band. When electron move from valence band to conductor band, then it conduct electricity and heat. In case of conductor, valence band and conduction band are found to be overlapping करते हुए पाए जाते हैं. तो ओवरलैप करने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में आसानी से चले जाते हैं और इसलिए से वो अच्छे से कंडक्ट करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि कंडक्टर्स, ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर, all the metals are good conductor, and their conductivity and their conductivity lies between 10 to power 4 to 10 to power 7, 10 to power 4 to 10 to power 7 per ohm per meter. Okay. In case of conductor, valence band overlap conduction band.
conduction band, overlap conduction band, which results easy conduction of electron. Silver is, as you know, that silver is the best conductor in metals due to lowest resistivity, and highest conductivity. Okay, this is all about the conductor. You can see the structure of conductor. Case of metal, once again I will repeat this. All the metals are good conductor, and their conductivity lies between 10 to power 4 to 10 to power 7 per ohm per meter. And you can see here, suppose this one is the valence band, this one is the valence band, VB valence band, and here is the conduction band. This one is the conduction band. In case of metal, in case of all metals, these conditions are found. Okay. Now we will come to the semiconductor. Next topic is semiconductor. Okay. Next one is the semiconductor. We will see first semiconductor. These have intermediate conductivity ranging between 10 to power -6 to 10 to power 4 per ohm per meter. Okay. In case of semiconductor, gap between valence band
band and conduction band is very low than in case of insulator and more than that of conductor. Okay, more than conductor. In case of on rising temperature, electron jump from valence band to conduction band. Okay, valence band to conduction band. You can see once again here, semiconductors, these have intermediate conductivity ranging between 10 to power minus 6 to 10 to power 4 per ohm per meter. In case of semiconductor, gap between valence band and conduction band is very low. Then in case of insulator के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बैलेंस बैंड की जो दूरी होती है कंडक्शन बैंड से, वो सेमी कंडक्टर के केस में कम होती है. सपोज कि अगर इंसुलेटर के केस में ये डिस्टेंस, ये गैप इतना है, तो सेमीकंडक्टर के बीच में ये गैप इतना हो. लेकिन यहाँ पे हमने लिखा है कि मोर देन दैट ऑफ द कंडक्टर. तो कंडक्टर में तो गैप होता ही नहीं, ओवरलैप करते हैं, और सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से थोड़ा ज़्यादा हो गया. आई बात समझ? तो ये हमारा हो गया सेमी कंडक्टर. अब इसको हम जो है कि बैंड थ्योरी के बेस पे देख लेंगे. थोड़ा सा एक बैंड बना करके कि इसमें कितना गैप होता है. ठीक है, तो सपोज कि ये हमारा ये कंडक्शन बैंड है, ये इम्पटी बैंड है CV, और ये हमारा है वैलेंस बैंड. क्या है हमारा? वैलेंस बैंड. ठीक है, वैलेंस बैंड. तो अब यहाँ पे जो गैप है, ये एनर्जी गैप, ये क्या है? ये लो है. एनर्जी गैप क्या है? यहाँ पे लो है. अब इस एनर्जी गैप के लो होने की वजह से अगर थोड़ा भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस बैंड के अंदर हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है कि कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकते हैं. लेकिन हमें यहाँ पे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. आगे हम चलेंगे इसके तो पढ़ेंगे कि ये जो
सेमीकंडक्टर हैं इनको हम फुल कंडक्टर के रूप में बना सकते हैं। वहाँ पे हम लोग इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कंडक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सेमीकंडक्टर के लिए। अब हम इसके बाद इंसुलेटर देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट इज इंसुलेटर। These are the solid which have very low conductivity ranging between 10 to power minus 20 to 10 to power minus 10 per ohm per meter. These are bad conductor of electricity and heat. ओके, इंसुलेटर वो होते हैं जहाँ पे कि वैल्यू जो कंडक्टिविटी की है बहुत लो होती है, तो इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर नहीं होते, बैड कंडक्टर होते हैं। यहाँ पे अगर हम एनर्जी बैंड बना करके देखेंगे, ये एनर्जी बैंड जो होता है यहाँ पे गैप अगर देखा जाए, गैप तो सेमीकंडक्टर से बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारा है वैलेंस बैंड। ठीक है, ये हमारा है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ये एनर्जी गैप लार्ज एनर्जी गैप, बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है। इस एनर्जी गैप को हम फिल अप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो कंडक्शन की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। इसको हम इस एनर्जी गैप को फॉरबिडन जोन के रूप में भी जानते हैं। फॉरबिडन जोन, ये फॉरबिडन जोन इतना बड़ा होता है, यहाँ पे कंडक्शन के कोई चांस नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि जो काज ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड है वो कैसे कंडक्शन करते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी कंडक्शन करने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर हम किसी आयनिक सॉलिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कैटायन एनायन एक जगह पे फिक्स होते हैं। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं कंडक्शन तब करते हैं जब मोल्टेन स्टेट में हो या इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, तब वो कंडक्शन करते हैं। अगर हम किसी मेटल की बात करते हैं
तो मेटल के केस में हमने बताया कि जो हमारा कंडक्शन बैंड है, एनर्जी बैंड है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे कि बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र करेगा या आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, और वो एनर्जी नेक्स्ट बैंड को ट्रांसफ़र करेगा, नेक्स्ट को करेगा, ऐसे करते करते एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, मेटल के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री रहते हैं, जिसके कारण आसानी से कंडक्शन हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से कंडक्शन के पीछे यही रीज़न होता है कि मेटल के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। बहुत पास पास क्या एक दूसरे को ओवरलैप करते होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो कंडक्शन बैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में आसानी से आ जाता है और वो कंडक्शन करता है, इसलिए मेटल हमारे जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है, कोई फॉरबिडन जोन नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी इंस्ट्रप्शन नहीं होता है और कंडक्टिविटी यहाँ पे जो होती है वेरी हाई हो जाती है। लेकिन इन केस अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत बड़ा फॉरबिडन जोन होता है, जिसमें अगर हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएं, कितना भी हीट दें, तो इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएगा, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें, वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं आ पाएगा। अब उस गैप को चाहे हम फिलअप कर लें तो भी कंडक्शन के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बहुत लो कंडक्टिविटी वहाँ पे चूँकि होती है, अभी हम लोगों ने देखा 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻10 तक की होती है, तो वहाँ कंडक्शन की कोई चांस नहीं है। इवन जबकि वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी देने पर वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन इंसुलेटर के केस में क्या होता है कि जो एनर्जी गैप है, जो फॉरबिडन जोन है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो बहुत कम है। इस वजह से जब हम उसको एनर्जी देते हैं बैलेंस बैंड को, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के हीट पा करके कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। तो उस केस में सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कंटिन्यू बढ़ती जाती है, और कब बढ़ती है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो उस केस में जो है कि कंडक्टिविटी अपने आप उसकी बढ़ जाती है। आई बात समझे? और अगर चाहें तो हम जो है कि उस सेमी कंडक्टर को पूरा कंडक्टर बना सकते हैं बिना हीट दिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों के बीच में समथिंग ऐड करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी जो कंडक्शन में हेल्प करें। जैसे हमने ये पेन यहाँ पे रख लिया, तो अब जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की, बिना कुछ मिलाए हुए एनर्जी गैप और वैलेंस बैंड के बीच में और हमारा जो कंडक्शन बैंड है, दोनों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को बिना किसी चीज़ से भरे अगर हम हीट देंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दूसरा तरीका ये होता है उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने का कि हम क्यों ना जो है कि उसके बीच में गैप को फिलअप कर दें किसी कंडक्टर से, तो आसानी से जो है कि वो कंडक्ट कर सकता है और पता है। ठीक है, परमानेंट कंडक्टर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम उस गैप को, जो हमारा कंडक्शन बैंड है सेमीकंडक्टर के केस में और जो वैलेंस बैंड है, उन दोनों को भरने के लिए अगर हम कुछ ऐड करते हैं, कुछ मिलाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है? डोपिंग का मतलब यहाँ पे है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच को फिलअप कर देना, वो डिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, तो उस डिस्टेंस के कम हो जाने से या फिलअप हो जाने से वो एक अच्छे कंडक्टर का काम करने लगता है। अब ये जो डोपिंग के प्रोसेस से सेमीकंडक्टर को दो तरह से बना सकते हैं। एक हमारा सेमीकंडक्टर होगा पी टाइप और एक हमारा सेमीकंडक्टर होगा एन टाइप।
पी टाइप और एन टाइप जो नाम है वो खुद भी सजेस्ट करते हैं। पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज यहाँ तक आप लोग रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। कोई डाउट होगा तो ऑफलाइन क्लास में उसे हम क्लियर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।